I'm revising, or you can say I'm doing the chapter entrepreneurship development. This is part of your business studies. ये जो chapter है, ये आपके business studies का part है, and you will be having the questions from it also. No doubt, you will not be having any problem in solving the questions from this chapter, since the chapter is very generalized. Secondly, you have already done this chapter in your 11th standard also. Yes, definitely it is somewhat different, लेकिन most of the things you have already done. जब हम कहते हैं entrepreneurship development in our business language, in another word, it is the synonym to what we call as business. मतलब हम ये word तो हमेशा सुनते हैं कि भाई वो business कर रहा है. A business can be a running business. बिजनेस कैन बी ऑलरेडी जो रन कर रहा है वो एक बिजनेस हो सकता है, और यू मे बी स्टार्टिंग अ न्यू, बट entrepreneurship is where you are innovating your ideas. That is the difference between what we call as business and entrepreneur. Though it is synonym, लेकिन फिर भी जो डिफरेंस है वो ये है कि entrepreneur का मतलब है जब आपके दिमाग में कोई चीज आई कि भाई हम ये चीज क्यों ना करें. For example, nowadays there are many kinds of business which are running on different platforms. Specifically, if you look into the platforms like Etsy, 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 आप देखोगे तो they are promoting all the new startups which are even at the home. मतलब जो बिल्कुल माइक्रो लेवल पर है, नैनो लेवल पर है, उनको भी वो प्रमोट करते हैं. So that's when जो नैनो लेवल पर वो जो स्टार्ट कर रहा है या कर रही है, लाइक क्राफ्टिंग आइडियाज, स्टिचिंग आइडियाज, देन आपके पेंटिंग आइडियाज, उससे रिलेटेड आपकी कई चीजें, जैसे पैकेजिंग. आजकल पैकेजिंग हैज बिकम अ बिग बिजनेस. तो जो इंसान उस चीज को सोचता है कि भाई इसमें पैसा है, इसमें क्रिएटिविटी है, इसमें मेरा कल का करियर है, फ्यूचर है, दैट्स when an entrepreneur is born. Business can be anything where you have the one objective, where you might be having the objective of profit making by providing the services of product. लेकिन entrepreneurship में there is one thing added, that is an innovation. So let us quickly look at the chapter what we call as entrepreneurship development. The questions that you may be having, in fact, in another word, the questions you might be having, ki what is the meaning of what we call as entrepreneur. Entrepreneurship का मतलब होता है setting up one's own business, and this is into chunks. ये 3 टुकड़ों में है. हम इसको noun, verb and एक object, जैसे हम when we are talking about English, तो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू अ कंप्लीट सेंटेंस. सिमिलरली आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप है, दैट इज आल्सो, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है एंटरप्रेन्योर, द पर्सन हु इज एक्चुअली गेटिंग द आइडियाज. एंटरप्रेन्योरशिप is the action, the process, and the thing जो बाद में बन के आ जाता है, the outcome, the object is enterprise. The second question that you may be having is, when was this term first coined? सबसे पहले इसे किसने और कब जो है coin किया था entrepreneurship? It was first introduced in around late 18th century, and it was an economist Richard Cantillon. लेकिन उन्होंने जो definition दिया था ना, the definition that Richard gave was an agent who buys means of production at certain price and sells at uncertain price. That is the difference. जब वो खरीदता है तो there is certainty कि यही होगा, uncertainty because he or she is earning the profits.
Why this is there? क्योंकि पहले हमारे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते थे कि कौन सी चीज को किस मतलब कि आपको जो है सेलिंग प्राइस पर बेचना है. Now there are different kinds of what you call as legal constraints, political constraints, then competitive constraints. भाई अगर मेरा जो मतलब कि competitor है, if he is selling the same product at this cost, so I cannot exceed that. Government doesn't allow the people to sell on what price you want. तो ये जो पहले था आपका late 18th century के अंदर, वो आपका था what you call as entrepreneurship, that is buying the product at a certain price and selling it at uncertain price. Uncertain इसलिए क्योंकि we are adding the profit. But now जो अब हमारा modern theory है, because entrepreneurship is now a full-fledged career. We have many what you call as TED Talks on entrepreneurship development. The government of India, जो government of India है, it is also giving many kinds of incentives for the new startups. In fact, आजकल तो अगर आप MyGovern इनको मतलब if you are following it, you will see the number of startups according to the मतलब कि data or statistics. And it is said that की जो number of startups हैं in the past 9 years have मतलब कि that have been बहुत ज्यादा है as compared to the earlier period. Reason? Now the government is giving more importance and incentives. ये हम आगे पढ़ेंगे. Why? Now what is the definition of entrepreneurship development? ये आपके पेपर के अंदर आने वाले क्वेश्चंस हैं. That's why I have divided it into different. It's a systematic जो बिजनेस के लिए हम यूज करते हैं, purposeful but creative. मतलब something we are creating, but उससे पहले हम क्या करते हैं, हम नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं. हम अपने रिसोर्सेज को, दैट इज फिजिकल रिसोर्सेज, मशीनरी या फिर हमारा कैपिटल, देन हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि हमारे पास लेबर भी होगा या फिर जो एम्प्लॉयज होंगे वो जगह, इन सब को हम मोबिलाइज करते हैं. एंड जो भी चीज को हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, दैट्स अगर आप में से कुछ बच्चों ने इफ यू हैव वॉच्ड द शार्क टैंक, तो देयर वाज वन वेरी फेमस एक मतलब उसमें एक फेमस एक जोड़ी आई थी भाभी और ननंद की. आई डोंट रिमेम्बर बट दे वर मैन्युफैक्चरिंग पिकल्स. नाउ दैट पिकल्स जो थे, जो भी उन्होंने स्टार्ट किया था, दैट वाज एट देयर होम. दैट्स अ क्रिएटिव आइडिया. और जब उन्हें लगा कि लोगों को आइडेंटिफाइंग द नीड्स मींस, जब उनको समझ आया कि लोगों को वो चीजें पसंद आ रही हैं, तो उन्होंने मैन, मटेरियल, मनी सबको मोबिलाइज किया, इकट्ठा किया, एंड देन दे स्टार्टेड दैट एज अ प्रोडक्शन. सो दैट्स एंटरप्रेन्योरशिप. एंड व्हाई दिस इज डन? सो दैट when we are giving something, it is valuable to the customer. When we are producing something and those who have put the money, यहाँ हमारे शेयर होल्डर्स नहीं हो सकते हैं, मे और मे नॉट बी, बट जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको रिटर्न्स एंड ऑफ कोर्स अपने लिए भी प्रॉफिट्स. दैट्स द definition, modern definition of entrepreneurship. Now what are the characteristics? ये भी आपके पेपर के हैं. It's a systematic activity. Why systematic? There are certain process. There is a मतलब कि there are certain steps that you need to. Of course, when we say business, सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में बत्ती की तरह जलती है वो होता है प्रॉफिट. लेकिन उसके साथ में आता है रिस्क. Without risk, no gain. Something new, innovative, something lawful, something producing,
नॉट ऑलरेडी रखा हुआ चीज को बेचना नहीं, समथिंग यू आर प्रोड्यूसिंग। अब जो आपको मैंने बताया था कि पिछले 9 सालों में अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स, द नंबर ऑफ entrepreneurs have drastically increased. The reason is, जितने entrepreneur होंगे tomorrow they would be the one who would be capital या फिर wealthy people जिनको हम बोलते हैं। आज हमारे पास चाहे हम कहते तो गिनकर हम कह सकते हैं कि जो लोग इस बिजनेस में है तो हमारे नाम से निकलता हो, अच्छा रिलायंस हो, अदानी, बस हम टाटा, हम 4 जनों को बोल सकते हैं। बट अगर आज हमारे पास ऑन्टरप्रॉनर्स होंगे तो कल हमारे पास 40 मतलब कि ऐसे कैपिटल फॉर्मर्स होंगे। और जब ऐसे कैपिटल फॉर्मर्स होंगे तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू डेवलप इन द कंट्री यूजिंग द इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। भाई जीडीपी बढ़ेगा, जब वो चीजें बनाएंगे तो वो बिकेंगी, बिकेंगी तो आपका रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू आएगा तो टैक्सेस आएंगी, टैक्सेस आएंगी तो आपका डेवलपमेंट होगा। एंड देन इफ देयर आर न्यू थिंग्स जो कहीं और नहीं बना है, हम बना रहे हैं, तो देन इट वुड बी ऑल्सो एन इनोवेशन टू द कंट्री। तो हर तरीके से देयर वुड बी डेवलपमेंट। स्पेसिफिकली इफ यू अगर आप लोग जो हो नीति आयोग को खोलते हो तो नीति आयोग के अंदर दे हैव गिवन द एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उन्होंने अलग अलग फील्ड्स दिए हुए हैं जहां पर दे वांट पीपल टू इन्वेस्ट, जहां दे वांट पीपल टू कम आउट विथ आइडियाज। जैसे इस साल जो है मिलेट का था, मिलेट मतलब कि इस साल जो है हमारा मिलेट ईयर चल रहा है, तो देर आर नंबर ऑफ स्कीम्स, इंसेंटिव्स कि अगर आप मिलेट से कुछ नया बना रहे हो, मतलब आपका जो स्टार्टअप है वो मिलेट को रखकर कुछ नया बना रहा है, दैट कैन बी एनीथिंग। अब मिलेट से तो बहुत सारी चीजें बन जाती हैं, हम तो घर में यूज कर रहे हैं, बट एज अ बिजनेसमैन इफ यू कैन प्रोड्यूस एंड यू कैन डू इट, तो इन दिस मैनर दे कैन बी हेल्पफुल एंड टुमारो दे माइट बी द कैपिटल फॉर्मर्स। आज वो छोटे लेवल पर है, कल को वो बड़े लेवल पर आ जाए। नाउ व्हाट डू द एंटरप्रेन्योर्स डू? जब एक बिजनेस सेट होता है तो हम क्या करते हैं? पहली बात, जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। ईदर यू आर इन द सेकेंडरी सेक्टर, यू आर इन द सर्विस सेक्टर, आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, कुछ नई चीजें कर रहे हो, और जब आपको उस नई चीज से पैसा आएगा तो यू आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द डोमेस्टिक इनकम। इन द coming years you are going to form the capital, you are going to generate employment। आप एक नहीं हो, अभी जो मैंने कहा था छज्जू, आई थिंक छज्जी ऐसा कुछ नाम है वो पिकल्स का, तो दे स्टार्टेड विथ 2 people, घर में 2 जने थे बट आज उनके पास 200 जने हैं, सो दे आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू सो मेनी। एक वो बियॉन्ड स्नैक्स करके एक वो बनाना चिप्स आता है, इट्स ऑल्सो अवेलेबल ऑन ऑल द स्विगीज एंड ये जो जितने भी आपके इंस्टामार्ट, जेप्टो, सब पर अवेलेबल है। ये भी ऐसा ही था। टुडे इट इज अ वेरी वास्ट बिजनेस, बट व्हेन इट वाज स्टार्टेड इट वाज एट दिस लेवल। बट धीरे 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 जैसे जैसे आपका काम बढ़ता है, आपके एम्प्लॉयमेंट, आप लोगों के एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाते हो। आज मे बी इन 1990s जब इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था, लोन लेना था, तो द वर्ल्ड बैंक हैड गिवन अस द क्लॉज, उन्होंने कंडीशन डाला था कि आपको अपनी इकोनॉमी में चेंजेस लाने पड़ेंगे, बिकॉज एट दैट पीरियड हमारा इकोनॉमी वाज इनएफिशिएंट, एंड इफ वी हैव मोर पीपल, इफ वी हैव मोर मनी, हमारा इकोनॉमी अपने आप में, अभी फिलहाल के लिए जो हमारा इकोनॉमी है वो काफी, कह सकते हैं कि राइट नाउ इट इज थोड़ा पीछे चल रहा है। एंड ऑफ कोर्स ये जो लास्ट के 2 मैंने लिखे हैं ना, वो आपके जो है
fostering courage and impact is not to the country but to the people. कैसे? अगर मैंने कोई चीज खर्चात की है तो मुझ जैसा कई जने जो है दे वुड ऑल्सो एंटर. जैसे वीवर्स, अभी मैंने जैसे आपको एचसी का एग्जांपल दिया था, उसमें आप ऐसे ऐसे लोगों को देख सकते हो, मतलब कि ऐसे ऐसे लोगों को देख सकते हो जिनको आपने सोचा भी नहीं. नाउ दिस इज एन इम्पैक्ट. धीरे धीरे, मतलब दैट्स ऑन अ सोशल मीडिया. बट स्टार्टअप्स में क्या होगा, पीपल लाइक यू, जैसे हमारे जैसा, अगर हम एंटरप्रेन्योर हैं, हमारे जैसी जो लोग हैं दे वुड ऑल्सो कम. जब हम दूसरों को देखेंगे कि भाई दे आर सक्सेसफुल, तो वी वुड ऑल्सो हैव द करेज. तो जो फोस्टरिंग करेज का मतलब है लोगों के अंदर जो है एक, क्योंकि हम बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा, इन इंडिया, इंडियन सोसाइटी वी हैव अ टैबू. अरे भाई वो बिजनेस की फैमिली है, हम मतलब ऐसा एक वर्ड बोलते हैं, यार वो बिजनेसमैन अलग होते हैं, हमारा दिमाग बिजनेस में नहीं चलता है. सो सी देखिए, ऐसा कोई दिमाग नहीं होता जो बिजनेस के लिए स्पेसिफिकली बना के भगवान ने जो है नट एंड बोल्ट लगाया हो, तो ऐसा कभी कुछ नहीं होता है. अगर हम अंबानी कहते हैं वो भी हम में से एक है, अदानी कहते हैं तो वो भी हम में से एक है. तो जब आप देखते हो कि भाई आपके जैसा इंसान वहां पर है and he or she is becoming very very successful, तो आपके अंदर भी वो करेज आ जाता है. आपको भी लगता है कि भाई मैं भी ये चीज को कर सकता हूं. एंड फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स, पहले यही होता था, पेरेंट्स जो है वो लोग बिल्कुल भी नहीं अलाउ करते थे. आजकल मैंने देखा 5 साल काम किया, 5 इयर्स काम किया, अपना वेंचर स्टार्ट कर दिया. आई हैव माई, मतलब मेरे खुद के स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, मेरे अपने नोन टू में पीपल को देखा है, दे लॉन्च देयर बिजनेस एंड दे आर रनिंग इट. द मेन थिंग इज नॉट लॉन्चिंग, दे आर रनिंग इट. दैट इज द मेन थिंग. लॉन्च तो कोई भी कर देगा, मैं कर दूं, कोई भी कर देगा, लेकिन उसको रन भी करते हैं. एंड द रीजन इज कि नाउ दे हैव ऑल द नॉलेज ऑल्सो. नाउ व्हाट डज अ डजन, मतलब कि एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, व्हाट डज ही डू, how does he set up his business, what is the process. तो सबसे पहले he would scan the environment, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है. you must have, हम लोगों ने लर्न किया था, उसके अंदर जो है we had seen पॉलिटिकल, टेक्निकल, हमारे जितने भी आपके एनवायरमेंट्स हैं उनको हम पढ़, मतलब कि स्कैन का मतलब है वी गो थ्रू. राइट नाउ व्हाट इज द फीजिबिलिटी ऑफ, मतलब कि बिजनेस, सबसे पहले हम इस तरीके से एनवायरनमेंट को पहले स्टडी करते हैं. एंड देन जो भी हमारा आइडिया है उसको हम जो है यूजिंग दी अदर टेक्निक्स डेवलप करते हैं. हाउ वी नीड टू, मतलब हम उसको कैसे लेकर आने वाले हैं, डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज का मतलब हाउ वी आर ब्रिंगिंग इट आउट. एंड देन ऑफ कोर्स दीज आर ऑल ओनली प्लानिंग, ये जो जितना है ये प्लानिंग के अंदर आ रहा है. तो फिर नेक्स्ट हम करते हैं फीजिबिलिटी को स्टडी करते हैं, whether technically it would be feasible, legally it will be feasible, इकोनॉमिकली, कमर्शियल मतलब प्रॉफिटेबल, फाइनेंशियल मतलब जितना प्रॉफिट, जो आपका स्टार्टिंग आता है, सारे के सारी ये सारी चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है. then you would be going for the people, money, other materials, launch करो, and over a period आप adapt करते हो. तो when a person is launching, when a person is planning, तो सबसे पहले उसको जो है ये जो बने हुए हैं ना बच्चा, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जीक्यूटिव समरी का मतलब है उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है. हाउ, मतलब
जब मैं कोई चीज को लिख रही हूं, इफ आई एम यूजिंग, ये मैं लिख रही हूं, तो हाउ आई हैव टू राइट कि वो मतलब कि स्क्रीन पर ऐसा बनकर आ जाए. आई नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ समरी. What will be my first step, second step, third step, fourth step? Then what are the product or service I need to offer? आपका इंडस्ट्री बैकग्राउंड का मतलब आपका बैकग्राउंड नहीं है. जिस इंडस्ट्री में आप कूद रहे हो, फूड इंडस्ट्री है तो फूड, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल, फार्म, आप जिसमें कूद रहे हो उसका क्या क्योंकि अगर उसमें बड़े बड़े प्लेयर्स हैं तो वो आपको आने नहीं देते. तो व्हाट इज द बैकग्राउंड where you are going to get the opportunity? What its connection with the market? मार्केट में उसका क्या कनेक्शन है? हाउ मच पीपल आर गोइंग? व्हाट वुड बी योर सेल्स स्ट्रेटजी? वो हमारा जो स्ट्रेटजी है, दिस कम्स अंडर व्हाट वी कॉल एज, हमने जो फिलोसफीज पढ़ी थी अपने मार्केटिंग में, वो यहां भी यूज होता है. whether you are going to sell out, whether you are going to market it out, whether it is going to be social marketing, what will be the risk factors, what would be your fund management and overall management. आप ये सारा एक प्लान बनाकर रखते हो. नाउ ये आपके अगेन दिस वन, द लास्ट टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से पेपर में क्वेश्चंस एक दो आए हुए. एनी entrepreneur should have competency. Now what is the meaning of competencies? Competency मतलब compete, यानी कि the knowledge about the product, knowledge about the business, knowledge about the environment, knowledge about things, skills, उसे कैसे हमें इंप्लीमेंट करना है. एटीट्यूड का मतलब होता है, एटीट्यूड हियर इट्स नॉट दैट घमंड. यहाँ एटीट्यूड मतलब हाउ यू आर डेवलपिंग योर सेल्फ. आर यू हैविंग द एटीट्यूड ऑफ लिसनिंग टू अदर्स? लिसनिंग जरूरी है, बट कच्चा होना जरूरी नहीं होता है कि भाई जिसने कह दिया वो मान लो. डू यू हैव द मोटिवेशन? तो जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के कॉम्पिटेंसी है वो नीचे लिखे हैं, एक एक करके मैं करवा रही हूं. दीज कैन बी योर एमसीक्यूज. परसिस्टेंट यानी कि परसेवरेंस, यानी कि नेवर से डाई. कभी भी जो है, यू शुड नॉट क्विट. थिंग्स कैन बी अप एंड डाउन. दुखी होकर हार नहीं मानना. इंफॉर्मेशन सीकिंग मतलब कई लोग होते हैं ना, उनका ये होता है मुझे सब पता. भाई सब पता तो तुम भगवान ही बन जाओ. we need to seek information. Learning is not a one time investment. It is always. लर्निंग की कोई एज नहीं होती. लर्निंग की कोई मतलब कि बैंक का वो बंद नहीं होता लॉकर. इट्स जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट विच कैन ऑलवेज टेक डिपॉजिट्स. एश्योरेंस ऑफ प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी, हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि जो मैं दूंगा या मैं दूंगी दैट शुड बी बेटर देन अदर्स. अगर आपने शार्क टैंक देखा हो, उसके अंदर हमेशा एक क्वेश्चन बोलते हैं और वो एक चीज बोलते हैं, आप दूसरों से कैसे अलग हो. मार्केट में तो ऑलरेडी ये प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट दूसरों से कैसे अलग है. मीन्स योर यूनिक, आपका यूनिक जो सेलिंग प्रोपोर्शन है, व्हाट इज दैट, व्हाट इज योर यूएसपी. कमिटमेंट मनी वाइज, आप जिस इन्वेस्टर से पैसा ले रहे हो, आपके वर्कर्स, आपका क्वालिटी, हर चीज में आपको कमिटेड होना चाहिए. डेडिकेशन इज वन ऑफ द, अगर आप पहले 5 साल अपनी जिंदगी के लगाते हो ना, आने वाले 15 साल आपके अपने हैं. ऑल द एंटरप्रेन्योर्स, इनफैक्ट आई वाज दैट डे रीडिंग अबाउट द, मतलब मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी
अबाउट ऑल द शार्क टैंक्स जो मेंबर है वो लोगों के बारे में पढ़ रही थी. तो what I found was that कि when they launched their entrepreneur, मतलब जब जैसे बोट आपका लॉन्च हुआ या फिर आपका शुगर कॉस्मेटिक्स लॉन्च हो, तो शुगर तो मुझे याद है बहुत सालों पहले इट वाज लाइक मतलब बहुत महंगा होता था. तो when it was started they all were very small, but आज they are all having their own posh, they are having their मतलब कि उनके पास अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं. And this has been possible because of the commitment. Next is you should be a doctor. You should be a doctor. Observe करो, diagnose करो, and then cure. Don't come to a conclusion. Be self-confident. And of course, you should be assertive. यानी कि आपका जो विजन है उसे आपको दूसरों को कन्विंस करना है. If you have the convincing power कि you are the best, then you are the best. If you don't have, then nobody can do. Nobody can do. अगर आपको लगता है कि भाई even this जो हमारा ये जो assertiveness है ना, this is one of the important one कि when we go to an interview, this is what we call as a personality development. तो जब हम लोग वहां जाते हैं तो सबसे जो पहली चीज हमसे पूछी जाती है ना, तो वो कहते हैं कि हाउ डू यू, तो हम कहते हैं आर यू श्योर, तो हमें कहना पड़ता है यस. ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बट कॉन्फिडेंस एंड असर्टिव. असर्टिव मतलब यस आई कैन. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आपके पेपर के अकॉर्डिंग. एंटरप्रेन्योरशिप कॉम्पिटेंसीज में जो ये लिखे हुए हैं, these are important: persistent, information seeking, high quality, commitment, problem solving, self confidence, and assertiveness. These are very very important. Last but not the least, what are N? आपने देखा होगा इस पे on the screen you can see NAFF NPOW N ACK N OT करके लिखा मैंने. This comes in the paper. मतलब what does it mean? आपका क्या मोटिवेशन है? पहला, you should be concerned. You should be associated with the product that you are giving. You should be associated with the service that you are providing. देखिए बच्चा, जब तक आप उस चीज के अंदर खुद नहीं आते हो ना, you can never provide it. एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जब आप इनोवेशन बोलते हो, तो इनोवेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग न्यू. And something new means when you are concerned about others, when you are belonging है आपके अंदर, आपका उससे कोई लेना देना है. आप इस बिजनेस के अंदर कैसे आए थे? आपका उससे कुछ मतलब कि यू हैव सर्टेन, कुछ आपका है उससे रिलेशन. देन यू कैन प्रोवाइड द बेस्ट. You cannot provide because you want to become a businessman. You can provide if you have the aptitude. आपको खुद को भी समझ आ रहा है वो क्या चीज है. I'll tell you one, even though quite irrelevant, लेकिन फिर भी हम इसको relevance में लेकर आ सकते हैं. In our schools we have many administrative in charges, and in my life throughout my career I've seen many administrative in charges, and I've seen the in charges जिनको पूरा knowledge होता था, पूरी नॉलेज होती थी उनको कि भाई क्या है क्या नहीं है. फॉर एग्जाम्पल वी हैड एन एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज हुज नेम वाज मिसेस कुमार. शी वाज मतलब कि उनको ना हम डिसिप्लिनरी भी नहीं बोल सकते, वो इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, बट स्ट्रिक्ट से ज्यादा वो रूड बहुत थी एंड वेरी प्राउड मतलब की. लेकिन उनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी क्या थी, उनको एक एक सिलेबस का वर्ड पता होता था. एंड दैट आई रियली मतलब मैं उनको इस चीज के लिए बहुत आई अप्रिशिएट, क्योंकि मैंने उस चीज को हमेशा समझा है कि आप किसी को तभी दे सकते हो जब आपको उस चीज का खुद को नॉलेज हो.
If you don't know, then you cannot give it. So that concern is very important. Second is knowledge for power. Now यहाँ पे power is not the power which we want. यहाँ पर power means to influence other. भाई आपकी चीज दूसरों से बेहतर क्यों है, आप ये चीज मार्केट में क्यों लाना चाहते हो? You should have the power to influence others. You need to have that assertiveness. Need for achievement. You should have. आप तभी खुद को सेटिस्फाइड करो जब आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है. If your product is giving a smile to others, then you have achieved that motivation, and definitely आपको better करने में करेगा. And of course you need to be self-reliant, not rely on others. तो ये हमारे 4 एंटरप्रेन्योरशिप मोटिवेशन है. मतलब ये हमें काम करने को मोटिवेट करते हैं. लाइक वी हैड रेड इन द डायरेक्टिंग चैप्टर मैस्लोस थियोरी. तो जो मैस्लोस थियोरी ऑफ मोटिवेशन है, वहां पर भी आपका है मतलब क्या, यू हैव द एफिलिएशन, यू हैव द सेल्फ रिलायंस, यू हैव द सेटिस्फैक्शन. तो हमें कौन सी चीज मोटिवेट करती है टू डू बेटर? Because you need to affiliate yourselves, you need to influence others, you need to be self-reliant, and you need to satisfy your inner conscience. And अगर आपके पास आपकी ये values है, ये attitude है, तो आपका जो entrepreneur, आपका जो enterprise है, that would be a success. That would be a success. This ये जो मैंने बीच में बनाया है, दिस इज ओनली अ लर्निंग वन, कि व्हेन वी आर डूइंग, वी शुड डू वन स्टेप एट अ टाइम. एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेसमैन बिकॉज ही इज नॉट पुटिंग हिज एनर्जी इनटू मेनी थिंग्स टुगेदर. वो एक चीज एक बार में करता है, और अगर वो हार जाता है तो ही डज इट अगेन, कीप डूइंग, एंड देन अर्न द प्रॉफिट. उसका जो एक मोटिव होता है वो होता है बिल्ड समथिंग फ्रॉम नथिंग. बिल्ड समथिंग फ्रॉम नथिंग, कुछ ना होकर उसमें से कुछ बिल्टअप करो. एंड व्हाई? बिकॉज you need to build something, you need to keep profit, you need to call the shots. मतलब जो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको भी आपने जो है फेस करना है. So that is entrepreneurship development, the chapter. And once again I'll tell you what are the things that you need to understand. ये जितना लिखा हुआ सब कुछ है. You may be having the meaning, you may have who is entrepreneur, what is entrepreneurship, and what is enterprise. Then who first coined this theory, then what is the modern definition. आपका everything is going to be of course in the MCQs only. Then जो characteristics हैं वो, then how does it help in the nation building, then these can be one way. layout जो है वो important है. And then जो ये जो नीचे दो दिए हैं, competency and the need for achievement, that is the motivation, they are very important. मतलब इनमें से आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, one or it may be all the above, that would be there. So that is all in the chapter entrepreneurship development.